friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, CLAT 2023 notifications are out. The examination is on 18th December. Form filling process is started on 8th of August. Last date to apply is 13th of November. Okay, these are the most important dates which you have to remember. So in today's session, what I'm going to talk about, in today's session, I'm going to help you out with respect to form filling process. Entire process in a step-by-step manner will be discussed with you. So here in this session, number one, what I'm going to discuss is one, the website from where you can fill, the dates that's I already mentioned to you. Okay, now there are few more technical issues which I am going to discuss with you in this particular module. ठीक है, so इस पूरे वीडियो को अच्छे से शांति से देखिए. You watch every detail in a step by step manner. I am going to fill this form live in front of you so that you can get to know all technical details about form application, and then you can start filling your application form. Okay, in case you get some more trouble in terms of application form filling process, okay, you want to come and you can say talk to us, okay, put a you can say details in the comment box. Will help you out with respect to all your form filling related details. Okay, chali, great. So let's start with this idea of this online application form. My dear students, exam is offline. So when you are going to appear on 18th of December 2022, your exam is going to be an offline, that's a paper based exam. Okay, however, the form filling process is only and only in an online format. Okay, it has already started. Today is 9th of August. It has started from yesterday. Okay, and then the last day for submission is 13th November. Okay, that is the first thing you should be knowing, the important dates. Okay, now let's move forward and understand few important aspects related to eligibility. My dear students, who can apply for this CLAT 2023 examination? There is no upper age limit. Note किया जाए, which means anyone who wishes to appear, ठीक है, for this exam with the minimum criteria, ठीक है, that person can definitely go. So what is a qualifying exam to appear for CLAT UG? CLAT undergraduation qualifying exam is 12th standard. So the students who have appeared for 10 plus 2 or equivalent, which is depending upon your board. If you are applying for from IB board, that is International Baccalaureate Board, okay, then possibly you are, we can say, diploma student, okay, and thereby it is 10 plus 2. Okay, anyway, now you need minimum 45% marks, okay, or equivalent for a general category, OBC, PWD, NRI, PIO, and OCI. However, if you are coming from SC and ST category, then you need minimum marks of 40%. Okay, I hope it is very clear. That's the eligibility. Now, can you appear for a CLAT exam if you are in 11th standard? Okay, my suggestion is clear cut no. Okay, that you should not. Unnecessary, you're not eligible, and then you are applying for it. That will not be a good idea. Okay, that will not be a good idea. However, you want to check the paper, it is available on the very same day. So don't worry about it. You want to appear for the paper, you can. But however, you should not. Okay, few other important information. Okay, candidates who may be appearing for their qualifying examination in March and April 2023 are also eligible to appear for 2023 examination, which means if you are in 12th standard now, you can say appear for this examination. That's very simple. They shall be required to produce an evidence, okay, of their passing qualifying examination at the time of admission. When will the admission take place? Admission will take place possibly in the month of June or July. Okay, so during June and July, you should show that you have completed your qualifying examination. You have certificate of completion. That's what you have to show. The result of qualifying examination 10 plus 2 shall be submitted by the candidate at the time of admission. So when you are taking admission, you must show your mark sheet. If you are not able to show your mark sheet, then you are not eligible. Very simple. If more than one candidate secures, we can say, equal number of marks in CLAT 2023, okay, then the break of tie
shall be determined based on this parameter. Number 1, higher marks in the legal aptitude section. जिस बंदे के हायर मार्क्स आएंगे उसको पहला रैंक दिया जाएगा. अगर वो मार्क्स भी सेम है तो उस बंदे की एज देखी जाएगी. अगर वो भी सेम है तो कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा. ओके, ठीक है. एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? एग्जाम का स्ट्रक्चर इज गोइंग टू रिमेन सेम. ओके, पिछले 2 सालों से, दैट इज इन 2020, इन 2021, ठीक है, एंड इन 2022, नॉट जस्ट 2 ईयर बट 3 years, 3 सालों से ये पैटर्न है. सो बाय 2023 द सेम पैटर्न इज कंटिन्यूइंग. ओके, व्हाट इज देयर इन अ पैटर्न? Pattern has legal aptitude, general knowledge, logical and English. Now interestingly, if you see the type of paper, this is a new pattern from 2020. Okay, so for those students who may be new to this, for them we have to understand that the questions will come in a paragraph format. Okay, so in legal aptitude you'll get a paragraph followed by question. Logical, RC, GK, math, एवरीवेयर यू गेट पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ के बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, अ सॉर्ट ऑफ ओपन बुक एग्जाम, अ सॉर्ट ऑफ स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन, अ सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन ओरिएंटेड एग्जामिनेशन. ओके, ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी अवेयर. ओके, ठीक है. तो दोस्तों पिछले कुछ समय से ये एग्जाम जो कांस्टेंट चल रही है 3 बार से, तो वहां से हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन है कि एग्जाम में क्या होता है, कैसे होता है. तो ये हमारे पास पूरी जानकारी है, सो हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है. कहाँ पे एडमिशन मिलेगा? देयर आर इन टोटल 22 NLUs. ठीक है, वहां पे आपको एडमिशन मिलेगा. 22 NLUs हैव ऑसम इंफ्रास्ट्रक्चर, very good quality of course and a very good quality of placements. So दोस्तों अगर NLU के लिए सोच रहे हैं, अगर आप लॉ करियर बनाना चाहते हैं, तो NLU जितना अच्छा कॉलेज मुझे लगता है कि आपको नहीं मिलेगा. तो अगर आपको NLU मिलता है तो आपको ले लेना चाहिए. दैट इज हाउ दी आइडिया वुड बी. ओके, ठीक है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी जरूरी है. NLSIU बैंगलोर जाना, नालसर हैदराबाद जाना, ठीक है, या ऐसे कोई भी अच्छे NLU में जाना इज ऑलवेज good. Okay, now when we are talking about application form, so we need to understand when we are, you can say, applying for this, you can say, online application, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे in a digital format. The first thing you need is a mobile number and email ID functional, जिसके ऊपर अगर आपकी ईमेल आईडी के ऊपर कोई OTP आएगा या वेरिफिकेशन की लिंक आएगी, आप उसको करने के काबिल होने चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपके मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको SMS आएगा तो आप उसको हैंडल करने के काबिल होने चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रंट फेसिंग पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ अ प्लेन बैकग्राउंड. आपका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, नॉट अ सेल्फी. कोई बैकग्राउंड में आप यू कैन से गोवा का रिसोर्ट दिखा के फोटो लगा के रखे हो, विल नॉट बी अ गुड आइडिया. ठीक है, द बेटर थिंग इज एक अच्छा सा साफ सुथरा फोटो लगा दीजिए. ठीक है दोस्तों, फोटो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मेरे मुताबिक एक अच्छा सा फोटोग्राफ आप अपने कैमरा से ले सकते हैं अपने घर में, इफ यू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ कैमरा, और यू जस्ट गो आउट एंड यू कैन से क्लिक दैट फोटोग्राफ. सिग्नेचर भी आपको डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए होगा. ठीक है, ये भी आपको एक कागज पे साइन करके उसका फोटो खींच के उसका जो पिक्सल है, ठीक है, जो उन्होंने दिया होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या पिक्सल में आपको चाहिए होगा, वो आपको कर देना है. इन केस यू आर अप्लाइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कैटेगरी which is scheduled caste, scheduled tribe or OBC, then you must have a certificate for that. Okay, relevant certificate by competent authority if you are applying for PWD category, or if you are applying for, you can say, below poverty line category which is called EWS category. ठीक है, तो आपको relevant certificate चाहिए होगा. बोर्ड एग्जाम की डिटेल्स आपको चाहिए होगी, जो अभी मैं बताऊंगा कितने मार्क्स आए थे आपके, वो आपसे पूछा जाएगा. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होना चाहिए इज अबाउट NRI कैटेगरीज एंड द सीट्स. मैं आपको बताता हूं, NRI कैटेगरी की अलग से सीट्स होती है. ठीक है, बहुत सारे NLUs में NRI कैटेगरी की सीट्स है. NRI मतलब यू मस्ट बी NRI और यू मस्ट बी NRI स्पॉन्सर्ड, which means you may be Indian, you're not NRI, but someone from, you can say, outside India is sponsoring you, saying that कि yes, he is my, you can say, a kind of nephew, he is my niece. ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं उनको स्पॉन्सर करना चाहूंगा. ठीक है, दैट्स ऑल्सो सफिशिएंट. ओके, ठीक है, NRI की सीट्स के लिए यू हैव टू अप्लाई सेपरेटली. नोट किया जाए, NRI की सीट्स के लिए, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड के बच्चों के लिए
या JNK के बच्चों के लिए यू हैव टू अप्लाई सेपरेटली, ठीक है, टू एन इंडिविजुअल NLU। अगर इंडिविजुअल NLU के पास ये सीट अवेलेबल है, अगर उनके पास सुपर न्यूमेरिक कोटा है फॉर NRI नॉर्थ ईस्टर्न कैटेगरी जम्मू कश्मीर, देन यू हैव टू अप्लाई सेपरेटली टू दैट कॉलेज। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है, जो आपका कॉमन लॉ एडमिशन प्रोसेस में नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नोट किया जाए। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, हैविंग क्लैरिटी अबाउट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि ज्यादातर NLUs में यू हैव अ डोमिसाइल सीट्स। ओके, डोमिसाइल सीट्स स्टार्टिंग विद NLSIU बैंगलोर, कर्नाटका की डोमिसाइल सीटें हैं, ये सर नो। सो दोस्तों, वो जो डोमिसाइल सीट्स अगर आपको चाहिए, देन यू नीड टू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बराबर है। डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आपको आपकी लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपालिटी से या नगर पालिका से मिलेगा। सो प्लीज अगेन से कलेक्ट दैट, आप वहां पे अप्लाई करिए और प्रोसेस अगेन से कंप्लीट करके अपने पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके रख दीजिए। So when you have a domicile certificate, you can click on whether you are a domicile of a particular state or not. Okay, so ये याद रखिएगा। I'm going to make a separate video on NRI seats, JNK seats, नॉर्थ ईस्टर्न कैटेगरी सीट्स, पूरा मैं बताऊंगा आपके लिए। आपको ये भी बताऊंगा कि अलग अलग कैटेगरी की कितनी सीट्स है, हर कॉलेज की फीस कितनी है, सब मैं आपको बताऊंगा। साथ में डोमिसाइल की सीटें कितनी है वो भी मैं बताऊंगा। दैट्स ऑन द सेपरेट वीडियो। Another question you may ask is, sir, is there a need to fill 22 NLU preferences now? When I am filling the form, I have to give preferences, which means मुझे पहले कौन सी कॉलेज में चाहिए, दूसरा किधर चाहिए, तीसरा किधर चाहिए। Do I need to fill that preference today? No. When you are applying for the CLAT form, you are not required to do it. There will be no option to fill this NLU preference, but you will get NLU preference after the results are declared, जब आपको काउंसलिंग राउंड के लिए बुलाया जाएगा। Now what do you mean by काउंसलिंग राउंड? काउंसलिंग राउंड में जब आपको बुलाया जाएगा, विच इज बेसिकली कहीं पे आपको जाना नहीं है, इट्स एन ऑनलाइन इन्विटेशन। यू कम ऑन दी ऑनलाइन साइट, दैट्स अ कंसोर्शियम ऑफ NLU की साइट पे आएंगे और वहां पे आप ऑनलाइन अपने एक से डिटेल भरेंगे कि मेरा प्रेफरेंस कौन सा है, वो आप भरेंगे। ठीक है, बस दैट्स इट, दैट्स द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग राउंड। ओके, you pay some money, you fill the preferences, you submit all details before the deadline, and then you wait for the allocation of NLU to you. That's what you will wait for it. Okay, I hope it is very clear. Great. So ये NLU का preference आपको कब भरना होगा? After results are declared. Clear है? Very good. Sir, I am targeting law admissions in 2023. So I'm looking at June, July 2023 में admission. I'm in 12th standard. Do I need to appear for this 18 December वाला CLAT? Isn't it CLAT 2022? The answer is yes, you are required to appear for this CLAT 2000, we can say 23, which is going to take place on 18th of December. कब हो रहा है? 18th of December. दोस्तों, ये CLAT 2022 दिसंबर एग्जाम इज फॉर 2023 एडमिशन। ठीक है दोस्तों, इस साल से एग्जाम प्रीपोन हुई है। ठीक है, जनरली एग्जाम मई में होती थी, नाउ इट इज क्वाइट अर्ली। ठीक है, सो यू हैव टू कीप इन माइंड, आई रिपीट, इफ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड राइट नाउ, यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। क्लियर है? बढ़ सकता हूं आगे? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपका साइट, हम इस साइट पे चलते हैं और देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। बढ़ सकते हैं आगे? चलिए, ग्रेट। So my dear students, what I'm going to do is I'm going to fill the form live for you, ठीक है, so that it becomes easier for you to understand. Let me start. So I'm writing this consortium of NLU site. मैं यहाँ पे गया, ठीक है, so I'm clicking on the site, ठीक है। This site is you can say quite updated, ठीक है, काफी अच्छे से उन्होंने अपडेट करके रखी है compared to previous year, ठीक है, बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल साइट बनाई है, ठीक है। I'm sure you understand that CLAT is conducted for two part, which is called UG as well as for PG. So this is for UG and this is for PG. Okay, so this is the information provided on the top side, on the top right corner. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, this is CLAT 2023. So I'm clicking on it. Okay, ठीक है, so I'm here. Okay,
सो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे देके रखी है. सो दे हैव गिवन देयर आर 22 NLUs which are conducting this examination. ठीक है, फॉर द एडमिशन ऑफ 5-year integrated LLB and LLM program. ठीक है, इफ आई गो बिलो सो देयर आर सम नोटिफिकेशन टैब. बड़े काम की जगह है ये जो नोटिफिकेशन का टैब आपके पास आएगा. ठीक है, जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपको वहां पे नोटिफिकेशन आता रहेगा. ठीक है, ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. हाँ, 8 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो रही है. ठीक है, सितंबर में फर्स्ट सैंपल क्वेश्चन आएगा. ठीक है, मतलब ऑलरेडी 2020 में दे हैव गिवन 3 सैंपल पेपर्स. ओके, ठीक है, दिस इज they are going to give new or they are going to give the old one, we don't know, but that's a wonderful thing they are offering. First open campus visit day in the month of September. Now that's a new thing they are starting for this year, that there is an open campus visit. ठीक है, you want to visit NLUs, ठीक है, you can come and visit it. That's what they are trying to say to you. Then they are going to give release of second sample question set which is on 14th of October. Precise date, very good. ठीक है, 22nd of October. ठीक है, दे से ओपन कैंपस विजिट फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट. ठीक है, दैट्स हाउ द सिनेरियो इज. आपको अगर वापस विजिट करने जाना है तो आप जा सकते हैं. लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन इज 13th of November. ठीक है, रिलीज ऑफ थर्ड सैंपल क्वेश्चन सेट इज इन October 22 and 18th December is your examination date. Okay, so I think this is pretty clear. Now here, okay, this is the area where you have to work on. So this is register. Okay, so this is where the registration will take place. Let me start to talk about this. ठीक है, so here I am putting all my details. बराबर है, चलिए ग्रेट. तो एक बार मैं इसको अच्छे से कर लूँ. ठीक है, ओके, सो आई एम राइटिंग माई डिटेल हियर. ठीक है, माई मोबाइल नंबर इज व्हाट आई एम राइटिंग. ठीक है, ओके, माई ईमेल ID इज व्हाट आई एम पुटिंग इट हियर. ओके, चलिए बढ़िया. ओके, देन दे आर सेइंग पासवर्ड आई एम जस्ट यू कैन से राइटिंग सम रैंडम स्टफ. ओके, okay, so this is what I'm registering myself. ठीक है, and then they say कि yes, they have sent OTP on my registered mobile number. Okay, I need to activate my account. Okay, so this is the OTP provided. Let me check whether did I get the OTP or not. ठीक है, so I got OTP I believe. ठीक है, let me check. Yes, they have given me OTP. ओके, सो ग्रेट, आई एम एक्टिवेटिंग दिस. माई अकाउंट इज एक्टिवेटेड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नाउ दे आर आस्किंग मी माई मोबाइल नंबर एंड वॉट एवर द पासवर्ड विच आई क्रिएटेड. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट पासवर्ड. इफ यू डोंट रिमेंबर दैट इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. ओके, ठीक है, सो दिस इज हाउ द सिनेरियो इज. ओके, सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ओके, ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू सिलेक्ट इन दोनों में से कौन सा लेंगे, 1 साल का LLM या 5 साल का LLB. उसके बाद आई हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई फॉर क्लैट. मैंने ये 5 ईयर का क्लिक किया है. ओके, एंड देन आई एम अप्लाइंग फॉर दिस. सो यू हैव सिलेक्टेड टू अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट. प्लीज कंफर्म. आई से ओके. चलिए बढ़िया, सो आई एम राइटिंग दिस ओके. ठीक है, सबसे पहली चीज दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू सबमिट माई फोटोग्राफ एंड माई सिग्नेचर. ओके, फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में चाहिए या PNG फॉर्मेट में चाहिए. ठीक है, दैट्स व्हाट दे आर एक्चुअली आस्किंग मी. सो आई एम अपलोडिंग माय फोटोग्राफ. So they are providing this kind of thing. So I have to just try and you can say crop it in a proper way. So if I think it is pretty good, okay, I will submit. Okay, do you want to upload the selected image? I say okay, great. Then I'm putting my signature as well. So this looks okay. I'm submitting my image. Great. Chaliye. So this is what I have submitted. As per my 10+2 certificate, I'm writing my name. Okay, so this is what I have to write my name. Okay, okay, what is the gender? 3 gender are provided, male, female, transgender. बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हर छोटी छोटी चीज है. ओके, एक बार आप मेरे साथ फॉर्म भरने का देख लेंगे. ठीक है, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. ठीक है, आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी. प्लीज इसको देखिएगा, दैट विल बी वेरी यूजफुल टू यू. ओके, चलिए, फादर का नाम लिख पूछा है उन्होंने. ठीक है, ओके, तो प्लीज उसको अच्छे से भरिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मदर का नाम पूछा है आपके. ठीक है, ओके, सो ये भी मैं अच्छे से भरूंगा. नेशनलिटी क्या है, इंडियन है. ठीक है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर NRI रिजर्वेशन कैटेगरी. अगर आप आज क्लियर नहीं हो ना, ठीक है, दैट यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस NRI कैटेगरी, माई सजेशन इज से यस, पुट यस, दैट्स ओके. चिंता मत करो,
उसके लिए अलग से आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है ना, आप उसको यस करके बोल सकते हो। एनआरआई रिजर्वेशन कैटेगरी और एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, आप एनआरआई में हो, ठीक है, ओसीआई पीआई हो तो आप उसको यस करोगे, नहीं हो तो नो करोगे, पर एनआरआई स्पॉन्सर्ड में यस कर देना, क्योंकि कल उठ के आपके मन में इच्छा हो जाए दैट आई वांट टू अप्लाई फॉर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, तो आप कर सकते हो। नाउ दिस इज वेरी क्रूशियल, आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी कौन सी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, बिल्कुल ध्यान से भरिएगा। सो दिस इज जनरल, दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग फॉर मी, whether I belong to EWS, I say no. Okay, whether do I qualify as a PWD candidate, I say no. Okay, it all depends आपका क्या कैटेगरी है, do you qualify under BPL? Okay, so I'm writing no. Okay, ठीक है, so this is how the idea is, it says save as draft, I've saved it, ठीक है, and now I'm moving forward the next part, the next button यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है which is about communication details. सो मुझे पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, कम्युनिकेशन देनी है, क्वालिफाइंग एग्जाम देनी है, प्रेफरेंसेस, ठीक है, एंड रिजर्वेशन, ये है। चलिए देखते हैं प्रेफरेंसेस में क्या होगा। मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगा इन्होंने, सो आई एम राइटिंग इट हियर। आप अच्छे से लिखिएगा, हम जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि मुझे एडमिशन लेने के लिए इसको फिल नहीं करना है, सो इसलिए आई एम नॉट राइटिंग माई फुल एड्रेस, बट एनीवे यू शुड राइट इट, ठीक है। गुजरात, जैसे सूरत 395, ठीक है, 017, ठीक है। डू आई हैव एनी ऑल्टरनेट, यू कैन से मोबाइल नंबर, यस आई एम राइटिंग दिस माई ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ठीक है। चलिए ग्रेट, सो इसको सेव एंड ड्राफ्ट करते रहिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट। देन कम्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स। ओके, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन सी है मेरी, सो आई अपियर्ड फॉर 10+2 फ्रॉम अ साइंस स्ट्रीम, ठीक है। आई गॉट, यू कैन से आई स्टडी फ्रॉम गुजरात स्टेट बोर्ड, ओके, गुजरात सेकेंडरी स्टेट बोर्ड, जो भी आपके मार्कशीट पे लिखा होगा प्लीज आप उसके मुताबिक भरिएगा। कब मैंने पास आउट किया था, ठीक है, सो आई सेड इट इज पास्ड आउट, हाउ मेनी परसेंटेज डिड आई गेट, दिस इज व्हाट इट इज प्रोवाइडेड। ओके, चलिए ग्रेट, सो आई एम पुटिंग सेव एंड ड्राफ्ट एंड मूविंग फॉरवर्ड। ओके, प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस फॉर व्हाट, प्रेफरेंसेस फॉर टेस्ट सेंटर, कितना सिंपल है, ठीक है। सो यू कैन पुट एनीथिंग, सो आई एम राइटिंग दिस, मुझे जहां देना है, सो आई एम राइटिंग दिस सूरत फर्स्ट, सेकेंड इज माई वडोदरा, ठीक है, सो आई हैव टू टेक अहमदाबाद पॉसिबली, यस, सो आई एम टेकिंग अहमदाबाद, आई सेव एंड ड्राफ्ट, ठीक है, आई मूव फॉरवर्ड, ठीक है। डू आई बिलोंग टू एनी रिजर्वेशन कैटेगरी, तो ये उन्होंने कहा है, ये बड़े काम की चीज है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना, कोई गलती मत करना। फॉर एग्जाम्पल, ओके, क्वेश्चन है कि नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी बैंगलोर डिफॉल्ट रिजर्वेशन इज जनरल, आर यू कर्नाटका स्टूडेंट, आई से नो, आई एम नॉट, सो आई एम नॉट, है ना। अगर आप हो तो लिखिए आर यू रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना, आई एम नॉट, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी चीजें है, ओके, बराबर है। सिमिलरली एनएलयू भोपाल में मैं जेएन के रेसिडेंट हूँ, नहीं, ठीक है, मैं मध्य प्रदेश डोमिसाइल हूँ, नहीं, वेस्ट बंगाल जेएन के डोमिसाइल नहीं, और मैं डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल नहीं हूँ, ठीक है, ओके। मैं एक एक करके आपको पूरा बताता हूँ ताकि आपको बिल्कुल आइडिया लगे। जोधपुर में कोई डोमिसाइल नहीं है, रायपुर में देयर इज अ डोमिसाइल, वेदर एम आई स्टूडेंट ऑफ जेएनके और वेदर आई एम अ कश्मीरी माइग्रेंट, वहाँ पे आपको अपने मुताबिक टिक करना है, और मैं छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल नहीं हूँ, ठीक है। गांधीनगर, ठीक है, एम आई डोमिसाइल ऑफ गांधीनगर, यस, दैट इज गुजरात, ठीक है, तो मैं गुजरात का हूँ, ठीक है, मैं यस करूँगा। अच्छा, मैं स्पोर्ट्स कोटा में से हूँ तो आई कैन अप्लाई फॉर स्पोर्ट्स कोटा, मैं नॉर्थ ईस्टर्न से हूँ तो मैं वैसे क्लिक करूँगा। यहाँ पे गलती मत करना, इसको पक्का टिक करना, ठीक है, मिस नहीं करना अगर आप उसके साथ कनेक्टेड हो तो, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, अगर आप डिफेंस पर्सनल के सन या डॉटर है, प्लीज आप उसको करिएगा। कश्मीरी माइग्रेंट है, ठीक है, तो आप उसको करिएगा। मैं उत्तर प्रदेश का स्टेट लेवल का डोमिसाइल नहीं हूँ, ठीक है, पंजाब का भी मैं नहीं हूँ, ठीक है। अगर आप सिद्धूवाल डिस्ट्रिक्ट पटियाला में रहते हो, अगर आप एंसेस्ट्रल रेसिडेंट ऑफ विलेज ऑफ सिद्धूवाल, उसके लिए भी आपके पास कुछ एक दो सीटें अवेलेबल है। कश्मीरी माइग्रेंट जम्मू कश्मीर के लिए अवेलेबल है, ठीक है। पटना में मुझे रिजर्वेशन चाहिए, ऑब्वियसली नो। ईडब्ल्यूएस ऑफ केरला, है ना, नो, आई एम नॉट केरला नेटिव, ठीक है। उड़ीसा के अंदर, ठीक है, मैं भी उसके लिए नहीं हूँ, सो आई एम राइटिंग नो, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखिएगा दोस्तों, मैं
नहीं हूँ इसलिए मैं नो लिखते चल रहा हूँ ना। आसाम के अंदर आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम, नो। मैं एक ही जगह पे, देखो आपका भी कोई एक ही जगह पे यस होने वाला है, बाकी सब में आपका नो होने वाला है, और वो नो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मिस नहीं करिएगा। महाराष्ट्र, ठीक है, मैं महाराष्ट्र डोमिसाइल नहीं हूँ और महाराष्ट्र रिजर्वेशन में क्लेम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में कोई रिजर्वेशन में नहीं आता हूँ, ठीक है। अगर मैं महाराष्ट्र का रेसिडेंट हूँ, ठीक है, और फिर मैं SC ST हूँ, तो मैं महाराष्ट्र में रिजर्वेशन क्लेम कर सकता हूँ। याद रहेगा दोस्तों, क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। ओके, स्टेट लेवल रिजर्वेशन में क्लेम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। अगर मैं महाराष्ट्र का रेसिडेंट हूँ तो ही मैं क्लेम कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, दिस इज सोनेपत, ठीक है, नो। ओके, ठीक है, क्या बोला है, आई हियर बाई अग्री एंड एफर्म, यस, ठीक है, आई डू हियर बाई, ठीक है, गिव कंसेंट दैट माई डिटेल्स मे बी शेयर्ड विद एनी थर्ड पार्टी, सो आई से आई डू नॉट कंसेंट, ठीक है, दैट्स अप टू मी। ओके, वेदर यू अग्री कि भाई आपका आपका जो ये डिटेल है किसी और कोई कॉलेज के साथ शेयर किया जाए, ठीक है, आपकी मर्जी। सो ये आपकी पूरी डिटेल। ओके, सो यू अंडर ग्रेजुएशन 23rd का एडमिशन, ठीक है, एंड दिस इज 6898, मेरा नंबर आ चुका है, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ द आइडिया इज। ओके, ये है मेरा एप्लीकेशन। एडिट एप्लीकेशन करूँ, डिलीट करूँ, कोई चेंज करना है तो मुझे लगता है कि मुझे कोई चेंज करना नहीं है, ठीक है। मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, नो, आई डू नॉट वांट इट बिकॉज आई ऑलरेडी डन इट, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी पेपर अवेलेबल है, ठीक है। सो कंफर्म पेमेंट मुझे पूछा, ठीक है, सो प्लीज सिलेक्ट द ऑप्शन फॉर क्वेश्चन पेपर, उप्स, सो आई हैव टू से नो और यस, आई से नो एंड देन आई से कंफर्म पेमेंट। ओके, सो प्लीज कंफर्म योर एक्शन, आई एम सेइंग यस, ओके कर दिया मैंने, ठीक है, पे नाउ कर रहा हूँ मैं। now they are redirecting me to a particular payment page. Okay, so here I am writing all my details, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे पेमेंट करूँगा। ओके, ठीक है, चलिए बढ़िया। सो आई एम मेकिंग अ सॉर्ट ऑफ पेमेंट, आई एम सबमिटिंग ऑल माई कार्ड रिलेटेड डिटेल्स विच आई एम नॉट, यू कैन से, इन्फॉर्मिंग यू, ठीक है ना, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पर इट इज डन फ्रॉम माई साइड, ठीक है। जब मैं इसका पेमेंट कर दूंगा, ठीक है ना, पेमेंट कर दूंगा, देन आई विल गेट एन ईमेल, ओके, एंड दैट्स व्हाट कंप्लीशन ऑफ माय एंटायर प्रोसेस। सो दोस्तों, ये था आपका फॉर्म फिलिंग का कंप्लीट प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन। ओके, बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। जब तक आप, ठीक है, खुद से कुछ ज्यादा स्टुपिडिटी नहीं करोगे, तब तक यहाँ पे गलती होने के कोई चांस नहीं है, ठीक है। हाउएवर यू कैन वॉच दिस वीडियो वन मोर टाइम एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फिल द फॉर्म। क्लियर है, ग्रेट। सो दोस्तों, व्हाट आई विल डू नाउ, आई एम गोइंग टू गिव यू सेपरेट, यू कैन से, डिटेल अबाउट NLU के अंदर कितनी सीट्स है और अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या ब्रेकअप है, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि उसकी फीस स्ट्रक्चर कितनी है, नंबर वन। नंबर टू, आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव मोर डिटेल्स अबाउट NRI एडमिशंस, ठीक है, NRI एडमिशन कैसे होता है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड का एडमिशन कैसे होगा, स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन कैसे होगा, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और वो वहां से आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल राइट इन्फॉर्मेशन टू यू, ठीक है। कंफर्टेबल है दोस्तों, हमारे साथ, हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव यू ऑल द मोर राइट इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन अ राइट वे। ओके, और दोस्तों, जल्द से जल्द हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव यू अ वंडरफुल, यू कैन से, कोर्स बाय प्रो टैलेंट। ओके, ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।